जी அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். திருச்சிராப்பள்ளி தெற்கு மாவட்டம் மணப்பாறை பகுதியில் உள்ள விவசாய சமூகத்திற்கு சேவை செய்யும் நீர்வள அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான அவசர தேவையை தங்களது கனிவான கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். கரூர் மாவட்டம் கடவூர் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள பொன்னணியார் அணையும் மணப்பாறை தாலுகாவில் உள்ள கண்ணூத்து குளமும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல்வேறு காரணங்களால் நீர்வரத்து குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்துள்ளது. இந்த குறைவு 2834 ஏக்கர் பாசன வசதிகளையும் நிலத்தடி நீரையும் கடுமையாக பாதித்துள்ளது. இதனால் இவ்விரு நீர்நிலைகளையும் வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ள விவசாயிகள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் நோக்கில் காவிரி நதியில் இருந்து அதிகப்படியான வெள்ள நீரை பொருத்தமான பம்பிங் அமைப்புகள் மூலம் பொன்னணியார் அணைக்கும் குளத்திற்கு மாற்றி செலுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பீடு செய்ய நில மட்டுப்படுத்தல் மற்றும் துணைமண் ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ளும் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய ஆரம்ப கட்ட ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள ரூபாய் 83 லட்சம் மதிப்பீடும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும். ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்க செய்யும். மேலும் நிலத்தடி நீரையும் அதிகரித்து அப்பகுதியின் நிலைத்த நீர்வள மேலாண்மையையும் மேம்படுத்தும். மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படை விவசாயிகளின் நலனையும் பிராந்திய நீர்வள பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு இம்முக்கிய திட்டத்திற்கு விரைவான அனுமதி வழங்கி தேவையான நிதி ஒதுக்கீட்டை செய்யுமாறு ஜல்சக்தி அமைச்சரிடம் கோருகிறேன். இந்த திட்டம் உபரி காவிரி நீரை பயன்படுத்திக் கொள்ளும், இல்லையெனில் அது யாருக்கும் பயனளிக்காமல் கடலில் கலக்கும். இந்த திட்டம் தற்போது நீர் பற்றாக்குறையால் போராடும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றும். இந்த திட்டத்தை விரைவுபடுத்த பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா இன் கீழ் இந்த மாற்று திட்டத்தை சேர்ப்பது மற்றும் சிறப்பு நிதி உதவி வழங்குமாறு ஒன்றிய அரசை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த திட்டத்தின் வழியாக இது பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இந்த திட்டத்தின் வழியாக பல்வேறு வகையில் அந்த பகுதி மக்கள் கிராமப்புறம் இதனால் ஏராளமான விவசாயம் மட்டும்தான் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. விவசாயிகள் மட்டும்தான் அங்கே வாழ்க்கையை அதை ஒட்டித்தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த விவசாய நிலங்களை காப்பாற்ற வேண்டும், விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை கடன் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த திட்டம் தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்தப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெரிதும் உயரும் என்பதை இங்கே மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வழக்கத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த திட்டம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் இங்கே பேசுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். डॉक्टर भागवत कराड़ जी। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य में मराठवाड़ा एक क्षेत्र है जिसकी आबादी 2 करोड़ है और यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ है। एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र ये अविकसित क्षेत्र माना जाता है। मैं आपके सामने भारत की जल न्याय व्यवस्था के जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर खड़ा हूं। यह विषय है किसानों का भविष्य का संबंध में है। यह विषय ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों की जीवन का विषय है। मेरा विषय है सह्याद्री पर्वतमाला के निकलने वाला जल हर साल सीधा अरब सागर में समा जाता है। यह जल 100 TMC तक है। यह जल गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में साइंटिफिक टेक्निकल वे से डाइवर्ट करना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, अगर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन क्षेत्र में पानी के वजह से किसान का उत्पन्न कम है, पीने का पानी के लिए टैंकर पर निर्भरित है, खेत सूखे हैं, डैम सूख रहे हैं, पानी का ग्राउंड लेवल 350 फीट से भी डीप होते जा रहा है। यह भी सत्य है कि एक जगह बाढ़ तो दूसरे जगह सूखा, एक जगह लाखों लीटर पानी अरबी समुद्र में जा रहा है तो दूसरी जगह किसान पानी के बूंद के लिए बादल के तरफ देख रहे हैं। यह परिस्थिति बदलना है तो साइंटिफिक और टेक्निकल दृष्टि से काम करना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेते हुए बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे नदी जोड़ प्रकल्प में केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें मध्य प्रदेश का पानी उत्तर प्रदेश में स्थलांतरित कर रहे हैं, जल मार्ग बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अरबी समुद्र में जाने वाला पानी गोदावरी और कृष्णा बेसिन में डाइवर्ट करने की मांग करता हूं, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स है।
दमन गंगा पिंजाल प्रोजेक्ट, नार पार गिरना प्रोजेक्ट, पार गोदावरी प्रोजेक्ट, दमन गंगा वैतरणा गोदावरी मराठवाड़ा प्रोजेक्ट, दमन गंगा एकदरे गोदावरी मराठवाड़ा प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद सूखा मराठवाड़ा हरित और समृद्ध मराठवाड़ा बनेगा। खेती के लिए काफी मात्रा में पानी रहेगा, बाढ़ में नियंत्रण होगा, टैंकर मुक्त मराठवाड़ा होगा, किसान की इनकम बढ़ेगी, आर्थिक मागास मराठवाड़ा विकसित मराठवाड़ा बनेगा। जल संरक्षण यही राष्ट्र संरक्षण है। आज जल संरक्षण करने के बाद जीवरक्षण बनेगा और समृद्ध विकसित भारत बनेगा। धन्यवाद। श्रीमान सुगंध शेखर राय जी, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमको बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला के जिला अस्पताल के संबंध में याद दिलाना चाहता हूं। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाए जाने के कारण जिला अस्पताल का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जबकि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक जिला अस्पताल होना आवश्यक है। जो पहले का जिला अस्पताल है उसमें मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाई जा रही है, जिससे मेडिकल कॉलेज की दूरी 8 किलोमीटर है, जिससे प्रोफेसर तथा छात्रों को आने जाने में दिक्कत होती है। शाहजहांपुर के जिगनेरा में मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पर ज़मीनें खाली पड़ी हैं तथा मेडिकल कॉलेज का ओपीडी तथा अन्य भवन बनाया जाना आवश्यक है। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाए जाने के कारण शाहजहांपुर के लोगों को निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज का भवन बन जाने से जिला अस्पताल पूर्व की भांति कार्य करने लगेगा। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों में जिस तरह देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। अतः जनहित में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का ओपीडी तथा अन्य आवश्यक भवन बनाया जाए तथा शाहजहांपुर में बने मेडिकल कॉलेज में सीसी यूनिट, न्यूरो विभाग, हृदय रोग विभाग, एमआरआई, सीटी स्कैन, कैंसर संबंधी विभाग खोलने के लिए आधुनिक सुविधाओं की कमी को पूरा करते हुए डॉक्टर तथा नर्सों की तैनाती की कृपा करें। मान्यवर, मुझे हर्ष के साथ बताना पड़ता है, वर्तमान हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखी गई थी और पिछले सत्र में माननीय मनसुख मामडिया जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने सदन में घोषणा किया था कि जहां पर जिला अस्पताल नहीं वहां पर पीपी मॉडल से हम हर जिले में जिला अस्पताल बनाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि शाहजहांपुर में या तो जिला अस्पताल का नया भवन बना दें या मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बनाने की कृपा करें। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है। मान्यवर, 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में है, निराशा में है, पीड़ा में है, दुख में है कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान,
राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ बिहार का नौजवान भर्ती होता है, ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। मान्यवर, वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख को मेरे सामने वो रख रहा था। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। ये मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं हाउस की तवज्जो जो है अहम मसलों की तरफ ले जाना चाहता हूं। जनाब वाला, जम्मू के कई बच्चे जो हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जेर तालीम है और ये बच्चे जो हैं उनमें से 33 बच्चे जो है बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन के लिए मुतालबा करते थे, जबकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने ये वादा भी किया था कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो है आपको एडमिशन दी जाएगी, मगर आज तक उनकी एडमिशन नहीं दी। बच्चों ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया और 33 बच्चे जो है उन 33 बच्चों को मुअत्तल किया। मैं यही कहना चाहता हूं, अक्सर यहां नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो पत्थरबाज हैं। अगर अब हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? मेरा मुतालबा है सर कि वहां एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और कंसर्निंग अथॉरिटीज जो है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा सर SMVD मेडिकल कॉलेज कटरा, बच्चे 50 जो है मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं और सिलेक्शन जो है उसको हिंदू मुस्लिम किया जाता है और कॉलेज को बंद किया जाता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे ये गुजारिश है, और वो बच्चे जो है मेरिट पे सेलेक्ट हुए थे, मेरी आपसे ये बहुत बड़ा गुजारिश है कि उन बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरा में है, उनको फौरी जो है दूसरे कॉलेजों में एडमिशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग हैं, कॉलेज बंद होने पे मिठाइयाँ बांटी है, कॉलेज बंद होने पे मिठाइयाँ बांटी है। ये आपकी सोच है, ये आपकी मेंटलिटी है, ये आपकी सोच है। सर मेरी आपसे ये महत्वपूर्ण गुजारिश है, या तो जम्मू कश्मीर से के जो बच्चे यहाँ बाकी जो है यहाँ जो पढ़ते हैं उनके साथ मारपीट होती है, जबकि सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में जो है वो कोई ऐसा कानून लाए
ताकि ये जो बार बार जो मुनाफरत फैलाई जाती है इसको जो है वो खत्म किया जाए। मेरी आपसे ये गुजारिश है जो कटवा में बच्चे उनको जो है एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में मिलनी चाहिए। और व्यवहार में हुआ Don't deviate from your subject, please. If you are deviating, then it will be expunged. Now, Dr. K. Lakshman ji. Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on an important scheme called Pradhan Mantri Vishwakarma, which was most successful and the dream of our Pujya Babuji Mahatma Gandhi, making the Gram has a Gram Swarajya and Ram Rajya. Sir, a landmark initiative launched by under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with the noble mantra of Samman, Samarthya and Samriddhi. Sir, this scheme is not only an example for the government's unwavering commitment to empowering the rural poor, more particularly the marginalized sections and the weaker sections of the society. For decades, the backbone of our rural and informal economy, our artisans remained outside formal recognition. पिछले जो सरकार ने इन वर्गों के किस तरह वो गांव में जो परंपरागत जो कारीगर थे 18 तरह के जो सुतार थे, सुनार, राजमिस्त्री, लोहार, मूर्तिकार, कुम्हार, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, इन वर्गों के हित के लिए मोदी जी ने जो योजना बनाई, इस योजना के माध्यम से लगभग देश भर में कल हमारे मंत्री जी बताई थी 30 लाखों ने लाभान्वित हुए। To this comprehensive support, including skill upgradation, modern toolkits, collateral-free credit, digital transaction incentives, brand promotion and market linkages. So the government ensured that these artisans are seamlessly integrated into the mainstream of the country, and moreover, they are the real economic developers of this rural economy, sir. So these achievements are remarkable. The scheme has crossed 30 lakh registration by 2025, 3 years ahead of this program. Importantly, 54% of them are belong to OBCs, and almost 27% belongs to SC, ST, and even the minorities also got benefited to this scheme, sir. See, in my state, Telangana, more than 89,000 artisans have registered, and over 63,000 have completed skill training, supported by 5,040 skill centers nationwide. This demonstrates the tremendous trust people have in this government policy. This Pradhan Mantri Vishwakarma is not merely a scheme, it is a civilized and revival mission of Bharat. So, in this context, through you, sir, I request the government to consider the expanding of this scheme and into a robust second phase, because the people are eagerly waiting for the scheme to be continued. More such people are eager to get benefit, so that India's craftsmen continue to remain integral partners in our journey towards making Viksit Bharat 2047. ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ट्रैवल एजेंट आ उन्होंने मनुखी तस्करी का एक नैटवर्क बनाया होया। इस विच पंजाबी जड़ियाँ गरीब घरां दीयां लड़कियां उन्होंने जिहड़ा है निशाना बनाउंदे आ ते उन्होंने ट्रैवल एजेंट खाड़ी दे देशां दे विच वेचण दा काम करदे आ। ओमान, इराक ते बंबई तक विच हुण तक भारती दूतावास की मदद दे नाल असीं 135 लड़कियां जिहड़ियां है वो खाड़ी देशों चों वापस बुलवा चुके हैं। ये टूरिस्ट वीजे के उत्ते लैके जाते हैं, उत्थे जाके उन्होंने नाल अरबी में करारनामा कर लेंदे आ ते मगरों उन्हों का शरीरक शोषण, जिसमानी शोषण ते अणमनुखी तसीहे जिहड़ा है उन्होंने दिते जाते हैं ते जिहदे नाल
ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 25 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ 202 ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ Thank you, sir. I would like to highlight the serious threat to our heritage sites from acts of vandalism. These attacks have increased in recent times. Hampi was the capital of the great Vijayanagar Empire, which ruled from the 14th to the 16th century. It is spread over 16 square miles. It is regarded as one of the world's largest cities in medieval times. Many foreign visitors wrote about Hampi and its grandeur. The site contains a number of temples and many other structures, including forts, mandaps, pillared halls. In 1986, Hampi was declared a UNESCO World Heritage Site. Unfortunately, some tourists who visit the site are not adequately informed of the historic significance of the site, and they resort to acts of desecration. A group recently broke a monumental pillar located outside a temple at that site. While 3 men engaged in uprooting the pillar, a 4th accomplice filmed the incident. The Archaeological Survey of India has issued a statement that they will reinforce the pillars at the temples, so it is not easy to vandalize them in future. Such acts of vandalism are reported from many other parts of India. Iran in Madhya Pradesh is a city that dates back to the Gupta period. It has the country's largest monolithic image of the Varaha incarnation of Vishnu. It has intricate carvings on its body. It is dated to the 5th, 6th century. Recently, a tourist stood on the pedestal of the image with his shoes on and had himself photographed by friends. He also tried to mount the image but failed because of the height of the image. There are so many such instances, but when asked why they did this, people said they had no idea of the historical significance of the temple. They just regarded it as a place for outing. Such acts point to the need to inform and educate tourists on the importance of the site they are visiting, and it is their duty to help in its preservation. It may be considered whether guards and guides posted at the temple at those sites can help sensitize the visitors of the historical importance of these sites. Thank you, sir. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, through you, I draw the attention of this august House to an important
issue concerning the institutional memory of the functioning of statutory commissions. So this commission plays a crucial role in safeguarding the rights of people, addressing grievances, advising governments, and making policies. Over the years, they handle thousands of individual cases, inquiries, recommendations, and policy interventions. However, like many statutory bodies, these commissions face a challenge arising from frequent changes in leadership, members, officers, and support staff. While these transitions are natural part of the institutional functioning, they can sometimes result in loss of continuity in long pending cases, repetition of earlier policy deliberations, delay in follow-up on recommendations already made. So this is not a criticism, it is an institutional design issue that deserves attention of the Commission's accumulated experiences is not lost in such transitions. Honorable Chairman, sir, these issues are often very complex, long-term and intergenerational. They require sustained engagements, historic context, and continuity of approach. Safeguarding institutional memory will enhance the Commission's efficiency and credibility. Thank you, sir. Shriman Derrick O'Brien ji. Sir, today I am making a proposal for a universal basic minimum wage. So why am I making this proposal? There are many reasons. 1 in 3 youth are not in employment, education or training. And even those who have jobs, there is no minimum wage flow. And the national wage flow effectively over the last decade is stagnant at about 176 rupees a day. So low wage depress consumption and lock workers into working poverty. So with this background, the solution I am suggesting is a single legally enforceable universal basic minimum wage floor below which no worker can be paid, irrespective of sector, irrespective of contract type, and irrespective of where the person works. So since the union government loves acronyms, so many acronyms, I thought we should also come up with a name for this. Universal Minimum Annual National Guarantee. Universal Minimum Annual National Guarantee, which means UMANG. UMANG. Sir, there are 4 points to be kept in mind if you introduce UMANG. 1, notify a binding national floor wage under the wage law. 2, index it automatically, so inflation, and revise it annually. Simplify the rates and categories for easy compliance, and this has to go to all kinds of workers, contract workers, gig workers, and most importantly, where the action is or the solution is needed, that is the unorganized sector. So this wage, there are many examples of state governments. Another model which is already going to start very soon is the Bangla Yuboshathi, where those between 21 and 40, if you finished class 10 and you don't have a job for 5 years, 1,500 rupees goes into your bank account. No questions asked, sir. And we are doing this in Bengal, which in any case is in the top 5 when it comes to lowest unemployment rates. And in these top 5 for lowest unemployment, 3 are opposition states, sir. Karnataka, Jharkhand, and Bengal. 2 of the 5 are BJP ruled states. Sir, this is a suggestion. As I said, don't copy state governments. Be inspired by state governments
So I want them to be inspired and introduce Umang. Thank you, sir. श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमजान जी। मैं इस हाउस की तवज्जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले की तरफ उठाना चाहता हूँ। वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। वहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स पर नज़र डालेंगे तो करीबन 21% या जीडीपी को वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और ख़ासकर जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है इसका जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है 9% है। और करीबन एग्रीकल्चर allied sectors 38,000 crore और horticulture alone contributes 10,000 crores in state's economy। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना 70% पॉपुलेशन को 70% पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है ये एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें जो हॉर्टिकल्चर है खाली हॉर्टिकल्चर सेक्टर 7 लाख फैमिलीज को फीड करता है, जिसमें करीबन 35 लाख लोग आते हैं। ये हमारे लिए कोई ऑप्शनल नहीं है बल्कि एक बैकबोन है फॉर आवर सर्वाइवल हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट्स ये है कि जम्मू कश्मीर में जो भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फंगिसाइड्स आते हैं दोज आर सबस्टैंडर्ड। और ना सिर्फ इससे ये कि सॉइल हेल्थ भी असरअंदाज होता है, क्रॉप्स भी ख़त्म होते हैं इससे क्रॉप यील्ड में भी, बल्कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं हॉर्टिकल्चर बेस्ड वो भी इससे मुतासर होते हैं। मेरी गुजारिश है ये कि जब भी कोई भी ऐसा ये जो इनपुट्स रियासत जम्मू कश्मीर की सरहदों में या हिमाचल या महाराष्ट्र में जो फ्रूट ग्रोइंग एरियाज हैं उसमें पूरा क्वालिटी कंट्रोल हो के ये फ्रूट ये जो इनपुट्स है वहां पर आने चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ वो ये है पटेल जी प्लीज टेक योर सीट, यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि लेटली आप टर्की से, ईरान से, इटली से, पोलैंड से और यूएसए से आप एप्पल इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह चेरीज जो हैं चिली और ईरान से, कीवी फ्रूट ईरान, न्यूजीलैंड और चिली से। ये अभी जो ट्रेड डील भी हो गई है यूएसए से, इसमें अगरचे आपने एग्रीकल्चर कुछ क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया है लेकिन इसमें कोई भी सेफ गार्ड ये नहीं रखा गया है कि जो फ्रूट्स हम कंट्री में पैदा करते हैं, चाहे वो एप्पल फ्रूट हो, कोई नाशपाती हो, कोई भी फ्रूट है, इसके लिए खास कोई मैकेनिज्म नहीं रखा गया है। तो मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ, एक तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है एक तो वो लागू होनी चाहिए और ये जो श्रीमान रामजीलाल सुमन जी ट्रेड सभापति जी, मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। सभापति जी, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ग्वालियर में, वहाँ जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक न्याय को समर्पित संगठन थे, अधिवक्ता थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते थे, वो चाहते थे कि ग्वालियर जो हाई कोर्ट की खंडपीठ है उस परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हो। एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वहाँ जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने 11 मार्च 2025 को उसकी अनुमति प्रदान कर दी सभापति महोदय, और ये तय हो गया कि 17 मई को महामहिम राज्यपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस मूर्ति को स्थापित करेंगे, प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन 17 मई से पहले ही 14 मई को जब उस मूर्ति को अंदर जाना था परिसर में, सभापति महोदय, तमाम लोगों ने उसका विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद उस मूर्ति को प्रवेश नहीं होने दिया ग्वालियर खंडपीठ परिसर में। सभापति महोदय उसका विरोध हुआ और परिणाम यह हुआ सभापति महोदय कि वो जो कार्यक्रम था महामहिम राज्यपाल का और मुख्य न्यायाधीश जी का, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया।
वहां एक लंबे समय से सभापति महोदय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, ये उसी जहनीत के लोग हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो इनका मानना यह था कि जब मनु जी का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग थे 1949 में जिन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। ये वही लोग हैं सभापति महोदय, ये वही Don't provoke anybody. Please come back to your सभापति महोदय, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, न राष्ट्रध्वज को अपनाया। मैं बहुत विनम्रता के साथ सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार की शक्तियों को समझता हूं। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का रवैया अत्यधिक लचीला है और वो जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनके लिए उदार है। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। करोड़ों लोगों की भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जुड़ी है। लोग चाहते हैं कि वहां प्रतिमा का स्थापना हो और मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा। लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार दावत दे रही है उनको हिंसा करने के लिए। श्रीमान नीरज डांके, श्रीमान नीरज डांके जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। अरे मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं जनहित से जुड़े हुए विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह विषय देश के लोकतांत्रिक ढांचे के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से संबंधित है। कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली यात्रा रियायतें महामारी के दौरान स्थगित कर दी गई थीं, जो उस समय की परिस्थितियों में एक अस्थायी एवं व्यावहारिक निर्णय था। किंतु खेद का विषय है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल होने तथा आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां सभी प्रकार से सुचारू रूप से प्रारंभ होने एवं अन्य श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतें भी पुनः लागू होने के बावजूद पत्रकारों को यह महत्वपूर्ण सुविधा आज तक उनकी बहाल नहीं की गई है। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि पत्रकार केवल समाचार संकलन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि देश के दूरदराज, दुर्लभ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर आम नागरिकों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदाओं, सामाजिक असमानताओं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार उन्हें सीमित संसाधनों, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों और समयबद्ध दबावों में काम करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा दी जाने वाली यात्रा रियायतें किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होकर के, बल्कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक एक आवश्यक सुविधा रही है। माननीय सभापति महोदय, यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित तभी सुनिश्चित हो सकता है जब पत्रकार निर्भय, स्वतंत्र और सुलभ साधनों के साथ कार्य कर सकें। पत्रकारों को यात्रा रियायतों से वंचित रखना अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है और यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के अनुरूप नहीं कही जा सकती है। विशेष रूप से छोटे एवं स्वतंत्र पत्रकार, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय मीडिया से जुड़े संवाददाता इस निर्णय से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। लोकतंत्र सशक्त, जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र तब ही रह सकता है जब उनकी आवाज निर्भय, स्वतंत्र और निर्बाध हो सके। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एवं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को प्रदान की जाने वाली सभी यात्रा रियायतों को तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल किया जाए। आपात स्थिति में उनके अधिकारों एवं सुविधाओं की अनावश्यक समाप्ति ना हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस नीति का लाभ वास्तविक एवं सक्रिय पत्रकारों तक सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद। नरसारी जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity to raise an important matter. The peoples residing in the northern part of the BTR Assam, adjacent to Indo-Bhutan border, have been facing drinking water scarcity since long time. Sir, because of the drinking river water, the villagers have been fallen victim of some communicable disease and non-communicable disease
such as TB, malaria, etc. On the other hand, the government scheme, due to the geographical formation of this area, comprising large boulders, gravels, and highly permeable strata, the installation of the conventional ground-based water sources, such as ring wells, shallow tube wells, and hand pump is technically unfeasible. Sir, the departmental study shows that the groundwater table in these areas lies at a depth ranging from 100 meter to 120 meter below ground level and is observed to be declining at an alarming rate each year. Analysis of historical groundwater data from deep tube wells of the existing 5 water supply schemes indicates a consistent downward, and approximately 20 years ago, the groundwater table was at around 60 meter depth, which declined to about 70 meter a decade ago and has now further fallen to depths ranging between 90 meter to 110 meter. Sir, it has been observed that the discharge from existing deep tube wells is insufficient to meet the prescribed norm of 55 LPCD, and the yield continues to decrease progressively each year. In many locations, the deep tube wells completely dry up during summer months, leading to severe water scarcity, sir. Considering the above facts, it can be reasonably concluded that if this trend continues, the deep tube wells in the region are likely to become entirely non-functional in the near future, resulting in an acute water crisis affecting both human and livestock population. It is pertinent to mention that these border areas are predominantly inhabited by economically weaker sections of society, making them highly vulnerable to water scarcity, sir. In order to avert the impending crisis and ensure sustainable access to safe drinking water, the implementation of surface water-based river source drinking water supply scheme is imperative. If such projects are implemented along the entire stretch of villages adjacent to the Indo-Bhutan border, the drinking water problem for both humans and animals can be resolved on a long-term and sustainable basis, sir. In view of the persistent and acute water scarcity across villages situated along the Indo-Bhutan border in all the districts of Bodoland Territorial Council, I strongly recommend to the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to implement the surface water-based drinking water supply projects on priority, sir. Thank you, sir. Ms. Swati Maliwal ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, एक डेवलप्ड नेशन की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि उसकी साफ सड़कें और नागरिकों के व्यवहार से भी होती है। आज ज्यादातर शहरों की हालत देख लीजिए, सड़क पर कूड़ा, फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स नॉन फंक्शनल। कोई शक नहीं है कि फैले हुए कूड़े और गंदगी के लिए सीधे सीधे राज्य सरकारें और नगर निगम जिम्मेदार है। लेकिन क्या देश को साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्या हम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब अपना घर कितना साफ रखते हैं, पर घर से बाहर निकलने पे वही सड़क कुछ लोगों को अपनी ही नहीं लगती। कई लोगों को मैंने देखा है, पार्क में चिप्स खाए, पैकेट वहीं छोड़ दिया, पानी की बोतल खत्म, सड़क पर फेंक दो, नई सफेद पेंट हुई दीवार दिखी, गुटखा थूक दिया, ट्रेन में खाना खाया, कचरा सीट के नीचे, लाइन लगी है, तोड़ दो। सर, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाइए, यहाँ धक्का अपने आप आपको ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है और बाहर भी निकाल देता है। सर, पहाड़ों से वीडियोस आती है, कुछ लोगों को बर्फ दिखी नहीं कि गाड़ी रोकी, बोतल खोली, तेज गाने चला के कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। सर, रिच और एजुकेटेड होना भी सिविक सेंस की गारंटी नहीं है। कई बार महंगी गाड़ियों के शीशे नीचे होते हैं और कूड़ा सीधा सड़क पर। सर, हम विदेश जाके कहते हैं वाओ इट्स सो क्लीन, पर क्या वहां अलग लोग रहते हैं? नहीं, बस माइंडसेट अलग है। सर, जापान में बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं, चाहे कूड़ा हाथ में लेकर पूरा दिन घूमना पड़ जाए, लेकिन उसको सड़क पर नहीं फेंकते क्योंकि वो पब्लिक स्पेस को सरकारी नहीं अपना घर मानते। सर, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देखिए, नो रेड लाइट जंपिंग, नो हॉन्किंग, नो केओस। सर, फेस्टिवल्स में जीरो प्लास्टिक, सफाई वैल्यूज से आती है और इसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल से सलाम करना चाहती हूँ। सर, हम ये भी देखते हैं कि कई बार नेताओं के जन्मदिन पर पूरा शहर पोस्टरों से भर दिया जाता है, दीवारें और फ्लाईओवर भी कई बार खराब कर दिए जाते हैं। सर, जब कानून बनाने वाले ही नियम तोड़े तो आम नागरिक क्या सीखेगा? सर, सिविक सेंस डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर टूरिज्म एज वेल। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक इमारतें, वर्ल्ड फेमस खाना, सर इसके बावजूद हमारे देश में पेरिस और वियतनाम से भी कम फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। सर, गंदगी, मिसमैनेजमेंट की वायरल वीडियोस हमारी ग्लोबल इमेज खराब करती है।
हमारे देश के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, पर कुछ लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। आई डिमांड सिविक सेंस स्कूल्स और कॉलेज में करिकुलम और डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बने। 2 रूल्स तोड़ने पे फाइन्स हो ईमानदारी से लागू किए जाए। 3 म्यूनिसिपैलिटीज का बजट और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। सर, देश को साफ रखना देशभक्ति है। जय हिंद। श्रीमान प्रकाश पारिक जी, पाराइक जी। धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल के डुवर्स क्षेत्र जिसमें जलपाईगुड़ी एवं अलीपुरद्वार जिला शामिल है, हर वर्ष भूटान से निकलने वाली नदियां रायडाक, तोरसा, सनकोस, बासरा, बनिया, पगली, रेती के उफान के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष आने वाली यह बाढ़ जान माल की भारी क्षति करती है और कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी को गंभीर प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार इंडो भूटान नदी आयोग का गठन की मांग किया गया है, जिसमें राज्य की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ताकि उत्तर बंगाल में आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इंडो भूटान नदी आयोग की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया, किंतु जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्र सरकार यह कहते हुए अपनी असंवेदनशीलता दिखाई कि इंडो भूटान नदी आयोग का गठन कोई प्रस्तावित वर्तमान विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में भारत भूटान के बीच संयुक्त विशेषज्ञ समूह, संयुक्त तकनीकी दल, संयुक्त विशेषज्ञ दल जैसी तंत्र कार्यरत है। यद्यपि यह संस्थाएं पूर्णवान एवं जल प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु बार बार आने वाली बाढ़ से उत्पन्न व्यापक समस्याओं का समाधान करने में पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों की आवश्यकता एवं चिंताओं को प्रभावित एवं प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक नदी आयोग के माध्यम से नहीं, जिसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। अंततः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार से आया हुआ जो प्रस्ताव जो इंडो भूटान ज्वाइंट रिवर कमिश्नर का है, क्योंकि चेयरमैन सर मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, अलीपुरद्वार। हम लोग नहीं भूल सकते 2025 5 सितंबर जो बाढ़ के कारण अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी क्षेत्र में 40 लोग का मृत्यु हुआ एवं यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है। इंडो भूटान ज्वाइंट रिवर कमीशन का जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा आया है, यह प्रस्ताव को पारित किया जाए एवं हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रकार का इरिगेशन अमेंडमेंट का पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता है। 2 लाख करोड़ रुपया पैसा राज्य सरकार का अटकाया हुआ, ये पैसा को जल्द से जल्द पारित कीजिए। एवं पश्चिम बंगाल का जो प्रस्ताव है, जो गरीब कृषक एवं चाय बागान से के आए हुए जो श्रमिक है उनको बचाइए, ये प्रस्ताव को पारित कीजिए। धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, आज हमारा देश गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। भू जल स्तर लगातार गिर रहा है और अनेक क्षेत्रों में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। पहले हमारे गांव में 2 या 3 बल्कि कई छोटे बड़े तालाब हुआ करते थे, जिनसे पेयजल, पशुपालन, खेती, मछली पालन, स्थानीय रोजगार को भी सहारा मिलता था। यही तालाब वर्षा के जल को रोककर धरती के भीतर पानी पहुंचाने का सबसे सशक्त और प्राकृतिक माध्यम थे। दुर्भाग्यवश आज अधिकांश तालाबों पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है। कई अवैध निर्माण हो गए हैं तो कहीं तालाबों की भूमि निजी उपयोग में ले ली गई है। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा देश में कुल 24,24,500 के करीब जल निकाय दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 97% जल निकाय ग्रामीण भारत में है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश के जल संरक्षण की असली ऋण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब है, लेकिन दुर्भाग्यवश से वही तालाब आज सबसे अधिक अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि अभी जो विकसित भारत जी राम जी का विधेयक आया है, उसके साथ ही साथ उसके माध्यम के द्वारा हम तालाबों की पुनः खुदाई, गहरीकरण, तटबंदी और जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएं। ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय को इस कार्य में सहयोगी बनाया जाए, ताकि तालाब केवल सरकारी संपत्ति न रहकर जनता की सामूहिक
जिम्मेदारी बनेगी। इससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा और हमारे अपने पारंपरिक जल स्रोतों को भी बचाया जा सकेगा और आगे वाली जो पीढ़ियां हमारी वो अधिक जल के संकट से। Before that, I want to hear that my aerial rulings you should follow. Though we are not in a position to talk about what has been discussed or debated in the other house. Okay. Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का शेखावत जी। आदरणीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदया, आपके अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Law and Justice as mentioned against my name at serial number 6 as per today's revised list of the business. Thank you, madam. आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम से सूचीबद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इसका प्रबंधन के बारे में मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 148वें और 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकारण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 155वें और 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय आइटम नंबर 8, माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। पति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज के पुनरीक्षित सूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Well, Chairperson Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and External Affairs as mentioned against my name at serial number 11 in today's revised list of business. आइटम नंबर 12, माननीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी। Chairperson ma'am, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, serial number 12, at today's revised list of business. आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी। Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 13 in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. आइटम नंबर 14, माननीय मंत्री श्री सुकांत मजुमदार जी। Honorable Chairperson Madam, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 14 in papers to be laid on the table of today's list of business.
आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pabitra Margetra, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Textiles mentioned against his name at serial number 15 as per today's revised list of the business. Thank you, ma'am. आइटम 15A महासचिव जी। Madam, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 12th February 2026, agreed without any amendment to the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha. नंबर 16 माननीय सदस्य श्री तापिर गांव जी। Honorable Chairperson, Madam, I raise to lay 386 report on holistic development of India's tourism sector through formal skill development, university level course and professional training for guides, hospitality and ecotourism in Hindi and English of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, Culture listed against my name, serial number 16 in today's list of business. माननीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी आइटम नंबर 17 को आइटम नंबर 7 के साथ लेख कर चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 18 माननीय मंत्री श्री सुरेश गोपी जी। Honorable Chairperson, with your permission, I rise to make this statement in the House listed against my name at serial number 18 in today's revised list of business regarding the status of implementation of recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas 2020-2021 on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the first report of the Committee on Demands for Grants 2019-2020 pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. सभा की कार्रवाई सोमवार 9 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। No. Nothing will go on record. Please, you take your seat. I want to continue with the question hour. Please. I have given you sufficient time. No, you cannot question the chair. You cannot question the chair, sir. Please. Are you going to? Yes, sir. Yes. Sir. Honorable Minister. Sir. माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सवाल Now the first supplementary, Dr. Vikramjit Singh Sagani जी। सर, मैं फर्स्ट सप्लीमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंजाब के किसानों की परफॉर्मेंस देखकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 4713 करोड़ से 9050 करोड़ कर दिया है। ये AIF किसानों को, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है, और किस लिए मिलता है? कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्ट, ऑटोमेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि FPO को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 FPO ही एक्टिव हैं, और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, दे आर द हाईएस्ट debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees per household, one of the highest in country. तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है,
इसमें देखिए, ना कोल्ड चेन लग सकता है, ना कोल्ड स्टोर, ना साइलोस तो लग ही नहीं सकते। तो इसका क्या प्रावधान कर सकते हैं कि इसको 5 करोड़ किया जाए लिमिट? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के विद्वान सदस्य डॉक्टर साहब को, विक्रमजीत सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होकर सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, किसानों के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीति, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हर समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, किसान अन्नदाता है, मतलब जीवन दाता है, और जीवन दाता है तो वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, और इसलिए उसकी हर समस्याओं की तरफ अगर ध्यान गया तो 50 साल में कभी कांग्रेस की सरकारों का नहीं गया। हमारे किसान अन्न के भंडार भरते रहे, फल और सब्जियां पैदा करते रहे, लेकिन उनको रखने की जगह तक ये पुरानी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या को पहचाना और पहचान कर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संरचनाएं किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला किया, और आज मुझे माननीय सभापति महोदय ये कहते हुए गर्व है कि इस योजना के अंतर्गत 44,243 कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें पंजाब में भी बने, 25,854 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, 25,565 फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन, 17,779 वेयर हाउस, 4,201 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, स्मार्ट और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए 3,549 इंफ्रास्ट्रक्चर और 2,827 कोल्ड स्टोरेज भी बने। और माननीय सभापति महोदय, इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5 से लेकर 15% तक की कमी आई। अब हमारे फल सुरक्षित है, किसान उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, हमारे अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, एफपीओज को भी। माननीय सभापति महोदय, ये एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत अलग अलग तरह के वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, बनाने की सुविधा दी जाती है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंजाब में भी माननीय सभापति महोदय 152 एफपीओज हैं जो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयत्नरत है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे? पहले तो कुछ थी ही नहीं, अब इतने कोल्ड स्टोरेज से लेकर राइपनिंग चेंबर से लेके अलग अलग तरह की संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो पंजाब सरकार से बात करें और प्रोत्साहित करें एफपीओज बनाने के लिए, किसानों को और संगठित करने का काम करें। हालांकि पैक्स का आंदोलन इतना मजबूत है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी कई केंद्र खोलकर किसानों की सेवा करने का काम कर रही है। तो एफपीओज को भी इन संरचनाओं के निर्माण का काम मिल रहा है और एफपीओज का भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपने जो राशि बढ़ाने की बात कही है, उचित समय पर उस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी तो ये पर्याप्त है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सगानी जी। आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20% बड़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में सर आपको पता है पैडी वीट का स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। तो हमें मिलके कुछ, क्योंकि नाबार्ड की रिपोर्ट है कि देश में 1.5 लाख करोड़ का अनाज बर्बाद हो रहा है, पंजाब में अभी भी प्रॉब्लम है। मैं परसों ही था, आप तो जाते रहे मेरे साथ फ्लड्स में भी, तो वहाँ पे रखने की जगह नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपसे प्रश्न है कि पंजाब को 2021-22 तक रूरल डेवलपमेंट फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड ये मिलता रहा 3-3%, 6%। हम वित्त मंत्री जी के यहाँ भी गए, अब ये अचानक उसमें बंद हो गया क्योंकि आपने कहा सब स्टेट्स को 2% देंगे। लेकिन पंजाब का केस अलग है, वो वहाँ हमारे
65,000 किलोमीटर के रूरल लिंक हैं, 1936 मंडियां हैं और पंजाब 18 मिलियन पैडी प्रोड्यूस करता है, 12 मिलियन वीट प्रोड्यूस करता है, वहीं हमारे साथ वाला राज्य 5 मिलियन करता है। तो सबको लॉ ऑफ एवरेजेस मत करिए कि वो 6 फुट वाला, 7 फुट वाला, 4 फुट वाला सबको दरिया में घुसा दिया। उसमें मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने वित्त मंत्री जी को भी, पंजाब के वित्त मंत्री आए, हम गए, इनको कई बार फुलकारी से भी सम्मानित किया, लेकिन कुछ इनकी दया दृष्टि हुई नहीं। आप एक सेंटर स्टेट कमेटी बना दीजिए, इसका बीच में रूरल डेवलपमेंट फंड का कोई प्रावधान कर दीजिए। रूरल डेवलपमेंट फंड फॉर पंजाब। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर सर। माननीय सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न से ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में मोदी जी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप रूरल रोड्स की भी और ग्रामीण विकास की भी अगर बात करते हैं तो अलग से आके आप चर्चा कीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। पंजाब में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अधिकतम जो सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, केंद्र सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंजाब की महान जनता ने देश की रक्षा के लिए जो महान बलिदान दिए हैं और पंजाब के गुरुओं ने जो महान बलिदान दिए, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में हम कोई कोर कसर। सप्लीमेंट्री श्रीमान मदान रतूर जी। मदान रतूर जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कदम उठा रही है? यदि हां, तो इस बदलाव में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कैसे मददगार है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्हीं की कल्पना थी, ये उन्हीं की कल्पना थी कि अन्न के तो भंडार हमने भरे ही हैं। हमारे किसानों ने, खड़गे साहब, माननीय खड़गे साहब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। मेरा निवेदन सुने, ये मोदी है जिनने तय किया अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं, AIF के तहत PM कुसुम के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगा के उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की है। किसान को अगर जरूरत है तो अपना सोलर पैनल इस योजना के अंतर्गत वो लगा सकता है, जितनी जरूरत है उतनी बिजली खुद ले सकता है और बिजली अगर बच जाए तो ग्रिड में डाल के देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। ये मोदी जी की कल्पनाशीलता है जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आदरणीय मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि मेरे प्रश्न का आप संक्षिप्त में जवाब दें। सर, पंजाब में AIF वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को कौन सी निगरानी तंत्र ट्रैक कर रहा है? महिला किसानों को मिलने वाले लाभों सहित और 2025 के आंकड़े ग्रामीण समुदाय के लिए बाजार पहुंच में क्या सुधार दिखाते हैं? सर, 2025-26 में AIF के तहत पंजाब के FPOs को वितरित ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी पर क्या प्रगति है और क्या लक्षित आउटरीच सीमांत किसानों के बीच कमजोर पहुंच को संबोधित करता है? सर, स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर देंगे तो बहुत आपकी कृपा होगी। सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पंजाब में AIF के तहत
32,014 आवेदन आए और 7,425 करोड़ रुपया 7,425 करोड़ 98 लाख रुपया पहले प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसके मुकाबले 11,351 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाएं AIF के अंतर्गत स्वीकृत करने का काम किया है, जिससे विभिन्न संरचनाएं बनी हैं। जहां तक इंपैक्ट असेसमेंट का सवाल है, AIF के तहत मैं पहले बताता हूं, बेहतर स्टोरेज पंजाब में भी प्रोसेसिंग, मशीनीकरण और सिस्टम से फिजिकल और क्वालिटी से जुड़े नुकसान में औसतन 5 से 15% की कमी आई है और एक परियोजना से 4 से लेके 9 लोगों तक प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं। Now fifth supplementary, श्रीमान राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं भी वही निवेदन करूंगा संक्षिप्त आंसर का। पंजाब के किसानों की सर 2 ही दिक्कतें हैं। Let your question also be brief. या पंजाब के किसानों की सिर्फ 2 दिक्कतें हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। एक तो MSP की, जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि उसको लीगल रूप कब देंगे, लीगल गारंटी MSP की कब देंगे, सीधा जवाब। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोरोना के बाद जो कोरोना में कष्ट था, तो लाखों मजदूर वहां से खेती और मजदूर अपने अपने प्रदेशों को चले गए, तो इससे वहां मजदूरी उनका बड़ा संकट, जिनको बोलते हैं फार्म जो है लेबरर्स, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एकदम ब्रीफ है सवाल। MSP वाला डायरेक्ट। ऑनरेबल मिनिस्टर, जब इनकी सरकार थी तो MSP में उत्पादन की लागत में 50% जोड़ने के स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, इन्हें इनकार कर दिया। कोर्ट में एफिडेविट देके हमने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के किसानों के लिए MSP घोषित करने का काम किया है। इनके समय जब इनकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, दलहन की खरीदी 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, और मोदी जी की सरकार ने की 1,92,00,000 मीट्रिक टन। तो खरीदने में भी हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दुगने रेट हम दे रहे हैं, और किसान प्रसन्न है माननीय सभापति। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन